Hello, everybody, and welcome to Color Positive. The last time when you saw our video, you saw how Ganga visited Danny and her mother in their home so that they can make something happen, some magic actually happen for the dogs that they help with feeding. Now, there seems to be a new problem in Danny's life. Recently, while they went out in the middle of the night around 1 o'clock to feed the dogs on the road like they always do, a man went ahead and attacked them. That is right. They were attacked by this man in the middle of the road while about 20 people saw them and there was nothing anybody did. This is exactly why we're making this video again. But the real reason for this video is this news. We can't believe that such a thing can even happen in a city like Mumbai, but the fact remains that they were assaulted. The mother was also beaten, so was Danny, and it's heartbreaking that none of the people actually came forward. The cops were actually didn't do nothing. They, in fact, just made an NC and asked them to leave. We tried our best to see how we can work something out, and we contacted a few other people so that some help can come through. And the reason we're putting this information in our video is because if you can do something about such a situation, to do something for Danny and for her mother. Here is a link of her public post that she's put up online. हाय। जैसे मैंने आपको कहा था कि हम किसी से मिलने जा रहे हैं। ये है डैनियल और ये है उनकी मम्मा जेनी सिंह। हाय आंटी। हाय, हाउ आर यू? ओके, गुड गुड गुड। वैसे गंगा कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी, बहुत सुंदर। ये गुड वन। सो डैनी, आप अपने बारे में कुछ बताओ। मैं पहले काम करती थी मल्टीनेशनल कंपनी में। एक एक्सीडेंट के बाद मेरे को जॉब छोड़ना पड़ा, पर काफ़ी सालों से हम इनकी देखभाल ही नहीं, ये हमारे साथ ही रहते हैं। तो मेरे पेरेंट्स ने शुरू किया था ये, जहाँ पे हमारा कुत्ता नहीं था, किसी और का कुत्ता था जब मेरा जन्म हुआ था 32 साल पहले। तो उसके बाद मेरी माँ और मेरे डैडी करते जा रहे थे, फिर पिछले 17 सालों से मैं करती जा रही थी उनके साथ, और अभी हम दोनों साथ में करते हैं। सो आंटी, आपको कैसे ख्याल आया फिर ये सब करने के लिए? कोई सोच आई अचानक से दिमाग में? सोच कैसा आया? ऑलरेडी आई एम डूइंग सोशल वर्क। ओके। I do social work plus I give lectures and also I do counseling. So another thing is that we have been seeing कि बहुत सारे लोग they are very rude to the animals. So we thought it's better we take up and we do something for them. क्योंकि इन लोग गाड़ी वाले, बस वाले जो भी है, they knock them down and they go. और ऐसा ही फेंक के जाते हैं, there's nobody to take care of them. तो हम लोग जाते हैं, उनको उठाता है, if we can दवाई करता है, नहीं तो we take them to wherever their hospital is, get them treated and bring them back to their places. सो डैनियल, आपने जैसे कहा कि लोग ऐसे कुत्तों को रास्ते पे छोड़ते हैं, लाइक समवन लाइक मी या और भी कोई लोग होंगे उनको बुरा लगता है कुत्तों के लिए, I mean, कोई भी ऐसा रास्ते पे है, तो फिर उस वक्त क्या करना चाहिए उनको? बिकॉज वी आर नॉट सो एजुकेटेड लाइक किधर लेके जाना है, इनको क्या करना है, तो वैसे लोगों ने क्या करना चाहिए? So there are various organizations that you can call. You can call Just Dial. एक ऑर्गेनाइजेशन है सेवा स्ट्रेस, बर्ड हेल्पलाइन मेन है, जहाँ पे मतलब वो कॉल्स राउट करते हैं, बता सकते हैं आपको कि ये एरिया में ये है, वो एरिया में वो है। तो अगर आपने कभी जस्ट डायल को कॉल किया तो मोस्टली जस्ट डायल आपको हेल्प कर सकते हैं। ये जस्ट डायल को कॉल करके बोले कि प्लीज़ हमें बर्ड हेल्पलाइन का नंबर दीजिए, हमें हेल्प चाहिए। एवरीबडी आजकल सब फेसबुक पे है। हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं फेसबुक टैगिंग, क्योंकि जब तक कोई फेसबुक टैग देखे बहुत टाइम हो जाता है। बट एट द सेम टाइम जहाँ पे आप जब कॉल करते हो जस्ट डायलर, आपको हेल्प मिल रहा है, अगर एक छोटा सा फेसबुक पे डालेंगे तो वो टैग होते होते कहीं ना कहीं से हेल्प तो आ ही जाता है। सो आंटी, हाउ ऑफन डू यू गेट किड्स? मतलब दिन में कितने मिलते हैं या महीने में एक बच्चा मिल जाता है, कैसे होता है? See, it's not like that. We get very often we get these puppies coming in, dogs coming in. As for Venus, she was hardly about 2 months when somebody came and kept her outside my door. Okay, that was on the 14th of February, and now she's 2 years with me.
So someone must have given you the Valentine gift. Yeah, very true. Valentine Day, Yeah. somebody gave me. So totally now in my house I have about 10 doggies. 10 doggies. 10 doggies. अगर थोड़ा सा सोचो, अगर हम किसी के घर में मेहमान बन के जाते हैं, वो घर वाला 1-2 दिन में परेशान हो जाता है, मतलब क्या मुसीबत है सर पे आई है यार, इतनी महंगाई है मेरे घर में है, बट 10 kids to इतना ख्याल रखना, it's a big applause. Yes. She's the oldest. She's 17. She's the Angel is oldest. 17. She's Angel is 17 years old. Yeah. Okay sir, why don't you introduce to your kids? So this is Angel. She's the oldest. She's the grandmother of the house. Okay. She's 17 years old. She just turned 17 on the 27th of Feb. Okay. So then after her are two outside. One is Charlie. He's 12. One passed away in October. वो 11 साल का था. That was Angel's son. Okay. Blackie is 8 years old. That is Venus. She's 2. And then the rest These of the are her gang that's children. hiding behind Mummy. So 1 there's year, 3 Damien, months. Diamond, there's Twinkle, Tuffy, and there are a few hiding as well. तो लाइक आपने मम्मी को पूछा कि कितने ऑफर आते हैं. हाँ, कभी कभी कोई जैसे इंसान अपने बच्चे को कभी रोड पे नहीं छोड़ते, पर जब उनका मन भर जाता है, ये थोड़े 6 महीने 8 महीने के हो जाते हैं, इनको रोड पे लोग छोड़ देते हैं. आजकल डर लगता है अडॉप्शन के लिए देने को, क्योंकि सब लोग लेते हैं और फिर आलिमिल कॉलोनी में प्राणियों के लिए छोड़ Then देते the हैं. tigers eat the puppy. एक just out of the box question है, do you think Indian government should do something for the pets like this? What do you think about it? Indian government, it's high time they should do something for it, because honestly speaking, after so much that has happened, इतना सारा जो इस देश में हो रहा है औरतों के खिलाफ, the safest thing on the roads today for women are these dogs. A request to government, Indian government, please do something with the dogs. Don't just leave them on the roads. फिर ऐसे हालत होते हैं उनके. No, we need stricter laws. और थोड़ा जो laws है इनके, अगर देखा जाए तो फर्स्टली एक रिक्वेस्ट तो कमिश्नर ऑफ पुलिस को जानी चाहिए कि सॉरी, बहुत कम पुलिस स्टेशंस में एनिमल वेलफेयर लॉज से एडुकेटेड है पुलिस. सेकेंडली, बहुत कम पुलिस कोऑपरेशन मिलता है. अगर मिलता है तो भी कहाँ से पहुँच निकल के क्रिमिनल्स जो है, मतलब जो ये विक्टिम्स की साइड से हम लोग जाते हैं लड़ने के लिए, क्रिमिनल्स उन लोग को दे गो स्कॉट फ्री. दैट्स वन अपील टू द कमिश्नर ऑफ पुलिस. प्लीज़ आपके ऑफिसर्स कॉन्स्टेबल्स को एजुकेट कीजिए एनिमल लॉज पे. सेकेंडली, इंडियन गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेक स्ट्रिक्टर लॉज, बिकॉज हर कोई कुत्ता है और अपने बच्चों को या अपने बैड इनफ माँ बाप को इस देश में तो कोई रिस्पेक्ट देता नहीं है. दैट यू कैन सी कितने हम लोग सीनियर सिटीजन्स को उठाते हैं हर हफ्ते रोड से. कुछ ज़्यादा हुआ नहीं. जब शक्तिमान वो कूड़ा जो गुजर गया, जब एक मंत्री ने उसको कुछ किया, उसको कुछ हुआ नहीं. अभी तक हम रुके हैं कि स्ट्रिक्टर लॉज हो, क्योंकि 50 रुपये भर के, मतलब अगर ऐसा हो तो वो लॉज कोई इंसान के लिए भी करे तो कल हर कोई इंसान को मर्डर करके 50 रुपये भर के जाएगा. हमारे बिल्डिंग का एक टैक्सी ड्राइवर, उसने अपनी पाए जोड़ के एक टवेरा खरीदी. तभी ये था, वो जमाना था कि वायर जोड़ के नीचे से गाड़ियाँ चालू करते थे. तो 2 कुत्ते वो भी अबैंडन किए थे किसी ने, मेरे घर पे खाते थे. सिर्फ बारिश के मौसम में अंदर आते थे सोने को, नहीं तो हमेशा वो गाड़ी के नीचे सोते थे. रात को चोर आए, चालू करने की कोशिश की गाड़ी को वायर्स के जरिए. उनको ये पता नहीं था कि गाड़ी के नीचे कुत्ते सोए थे. वो कुत्ते ने वो आदमी को यहाँ पे पकड़ा. मम्मी ने आवाज़ सुना और मम्मी ने दरवाज़ा खोला. अंदर 3-4 जो थे सब बाहर भागे. जब तक मम्मी ने बोला नहीं छोड़ो उसको, वो कुत्ते ने उसका पैर छोड़ा नहीं. तो इन अ वे इनका प्रोटेक्शन है, ये आपकी गाड़ियाँ प्रोटेक्ट कर रहे हैं. आजकल ज़माना बहुत बुरा है. जैसे आप समझ रहे हो, अगर तुम्हारी गली में, सोसाइटी में, बिल्डिंग में अगर कहीं कुत्ते हैं तो डरो मत, उनको मारो नहीं, चिल्लाओ नहीं, गालियाँ मत दो, तुम्हारे भले के लिए है वो. अगर नहीं है ना तुम्हारे पे, तुम्हारे सोसाइटी में, ला दो एक, तुम भी सेफ रहोगे, है ना. तो आंटी अब इतने सारों को पालना है, इतने सारों को अब इनको खाना भी देना होगा, तो नेचुरली मुसीबतें तो आती होगी. लाइक हाँ, तो फिर कैसे मैनेज करते हो आप उस वक्त? मैनेज करते हम लोग
कैसे भी सामने वाला को समझना मांगता है, उनको समझाते हैं हम लोग कि देखो कुत्ता इज नॉट अ न्यूसेंस, ओके। अगर आप जैसा कोई कोई लड़की लोग लड़का लोग को देखेगा तो कुछ नहीं होता है, जहाँ पे चिपक जाता है, जाके खड़े रह के बात करता है, हाथ लगाने को देता है। और जैसे कुत्ता देखता है अगो भाई कुत्ता वाले और फाइटर जैसा होता है, वही टाइम हम लोग उनको डांटते रस्ते को। कुत्ता से डरता है, लड़का आदमी लोग से नहीं डरता है। So there are many ways of handling the dog, being good to the dog. But if you are going to be cruel और सरिया लेके उसका आंखी निकालो, make it blind, स्टमक में पियर्स करता है रात को, जो हम लोग का फीडिंग खत्म होता है 2-2:30 बजे रात को, ओके, रास्ते का कुत्ता लोग, तो इन लोग को मालूम पड़ता है कि आंटी भी नहीं है, उसका लड़की भी नहीं है, तब उन लोग चांस लेते हैं, लकड़ी का ऊपर खिला तो के कुत्ते को मारता है, एकदम जख्म हो गया। उसके बाद कौन ट्रीटमेंट करता है? हम लोग ही करते हैं। वो टाइम कोई मायका लाल सामने नहीं आता है कि पापा ये पाउडर ले, हल्दी लो, ये दवाई का पैसा मैं दे रहे हैं, कोई आगे नहीं आएगा। हाँ, पर कौन सा भी त्योहार है तो जोर से बनाता है, दारू पीता, फिर कुत्ते को ही लात मारते हैं। आज खाना है, कल खाना है, पर कभी कभी ऐसे वक्त आता होगा कि कभी खाना ही नहीं होगा, तो कैसे मैनेज कर लेते हो? हाउ अबाउट द फंडिंग्स एंड एवरीथिंग? जब तक मेरे पास पैसा था तो चलता था। पिछले कुछ महीनों से एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो सोफा मैं बोल सकती हूँ कि हाँ, मैंने वो लड़की से मैं कभी मिली नहीं हूँ फेस टू फेस, पर जब बहुत बहुत बड़ी एक्सीडेंट केसेस पड़ती है, पर एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने मीन्स उन लोग भेजते नहीं है, उन्होंने किसी को बोल के मतलब प्लीज़ हेल्प देम, वो आ जाता है। मेरी एक फ्रेंड, एक क्लासमेट मोस्ट रिसेंटली, उसने मेरा एक पोस्ट देखा था फेसबुक पे, उसने मुझे 50 किलो राइस भेजा। उसके अलावा मैं किसी से मांगती नहीं हूँ, पर ये फर्स्ट टाइम है जहाँ पे मैंने एक कैंपेन डाला है मिलाप पे। तो या मैं किसी को पूछती हूँ कि गंगा कैन यू प्लीज़ डोनेट सम राइस फॉर देम, तो गंगा ने अगर किसी फ्रेंड से पूछा, तो वैसे इनका खाना चलता है। यहाँ पे एक चिकन वाला है जो बहुत स्वीट है, मैं उसको बोलती हूँ कि देख भाई, वैसे भी जो वेस्ट आता है मुर्गी के मुंडी और पैर, वो वैसे भी डस्टबिन में जाने वाला है। डस्टबिन में ये लोग कच्चा खाने से अच्छा और बीमारी आने से अच्छा मुझे दे दे, मैं उसको बॉईल करके इन लोगों को खिला दूँगी। तो आइदर मैं हफ्ते के लिए हर संडे पिकअप करती हूँ या हर रोज़ मेरे को इतना एक बैग देता है। मुंडी पाव भी पे हम करते हैं। मुर्गी पाव भी पे है, और बट रोज का जो चमड़ा आता है चिकन का, वो हम लोग पे नहीं करते हैं, तो गिव्स अबाउट 5 किलो फ्री एवरी डे टू अस। तो उसमें वो चल लेता है। रोड डॉग्स के लिए। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने कुछ मिलाप के बारे में कहा, तो कैन यू जस्ट इलैबोरेट कि क्या चीज़ है? तो मिलाप में मैंने एक कैंपेन शुरू किया है, ओके। डॉक्टर has said I'm still not supposed, I cannot work because my nerves have been damaged, so it will take 3 to 6 months more for it to repair. ये मैंने मिलाप पे कैंपेन इसलिए डाला है, मेरे लिए नहीं, मेरे घर की फंडिंग के लिए नहीं। नेक्स्ट 3 to 6 months मेरे पास फंडिंग नहीं है इनको खाना खिलाने के लिए, Monsoons also coming. और बारिश भी आ रही है। 150 डॉग्स गंगा सिर्फ खिलाने के लिए नहीं है। Now it's 1 to 170. हर साल मैं इनको वैक्सीनेशन कराती हूँ, ताकि अगर ये किसी को काटे तो सामने वाले को कुछ हो ना। तो ये फंड इसलिए डाला है क्योंकि वैक्सीनेशन ड्राइव्स होता है, इनका फंड फीडिंग होता है, उसके ऊपर से अचानक कोई इमरजेंसी आ जाता है Traveling तो for traveling. टू गो टू हॉस्पिटल, जस्ट सिर्फ उनको हॉस्पिटल लेके जाने को। हाँ, अगर नज़दीक में गए एनिमल केयर सेंटर में तो सिर्फ जाने को 150 या 200 होता है, आने को वापस। अगर मैं खुद उनको नहीं लेके जाऊँ, अगर एम्बुलेंस बुलाना है, सबसे सस्ता प्राइवेट एम्बुलेंस 1800 रुपये का है। फिर अभी हम लोग एक नई इसके लिए सोच रहे हैं कि ये फंड जो हम लोग जनरेट कर रहे हैं मिलाप पे, वो पैसे से अगर आपने सुना होगा रिफ्लेक्टिव कॉलर्स, जहाँ पे रात को जब मोटरिस्ट जो गाड़ी और बाइक वाले हैं उनको दूर से कुछ चमकता हुआ दिखेगा तो वो समझ जाएंगे कि कुत्ता या कोई जानवर वहाँ पे है, तो वो कॉलर्स जो है उस पर रिफ्लेक्टिव मटेरियल रहेगा। अभी वो कॉलर्स का कॉस्ट मेरे को पता नहीं अभी कितना बढ़ गया है पिछले 1 साल में, पर अगर मेरे को 170 डॉग्स के लिए ख़रीदना है तो मेरे पास बहुत पैसे होने चाहिए। तो काउंटिंग वैक्सीनेशन, इनके इमरजेंसी फंड, हर महीना हम लोग इमरजेंसी फंड एटलीस्ट हम लोग को नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए हम लोग ने 80,000 का टोटल होप कर रहे कि हम लोग को गोल रीच करें। अभी तक हमको सिर्फ 2500 ही मिला है, एक ही डोनर है, इसके आगे बढ़ नहीं रहा है क्योंकि
शायद लोगों को अभी तक पता नहीं चला है कि ये चल रहा है. वी वॉन्ट देम टू बी सेफ. हम चाहते हैं कि इनको इनका खाना मिले, भले इनको एक टाइम खाना मिले पर खाना मिले. Road dogs are living ones. Yeah. सो अगर किसी को डोनेट करना हो तो वो किस तरीके से डोनेट करे? बिकॉज आई होप मुझे पता है कि और भी कोई लोग होंगे जो पेट को लव करते हैं, तो अगर उनको डोनेट करना है तो वो किस तरीके से डोनेट करे, कहाँ डोनेट करे? कोई पर्टिकुलर साइट है या कोई तो अकाउंट है? एक मिलाप पे एक है मेरा जो अकाउंट, पर हाँ अगर कोई राइस डोनेट कर सकता है तो राइस डोनेट कर सकते हैं इनके लिए. जैसे कि एक आंटी जो आई थी रिसेंटली, उन्होंने इनके लिए कुछ मल्टीविटामिन दिए थे ये महीने के लिए, क्योंकि बाहर के डॉग्स थोड़े बीमार है. उन्होंने बैंडेजेस लाई थी बिकॉज उनको मालूम है कि मेरे को, तो ऐसे कुछ लोग हैं जो ऐसे चीज़ें ला के देते हैं. हाँ, if somebody wants to donate, they can go on to Milap. If somebody wants to donate, they can come here physically and they can donate it. And they can see for themselves, because मैं ऐसे ही नहीं मांग रही हूँ. I have it front of you. Because to clean a wound of a dog that much, जहाँ पे हमने close to 1/4 किलो कीड़े निकाले थे, वही wound clean करने के लिए मुझे 1 घंटे के ऊपर भले लगा. उसको क्लीन किया, मैगेट्स निकाला, पर मेरे जेब से अलग से 1500 रुपये गए थे जो मेरे मेडिकल के थे. नो डाउट आई डोंट माइंड मेरे मेडिकल एक्सपेंस पे जाए या ये इनके एक्सपेंस पे जाए, एक ही बात है. बट देन रादर देन पब्लिक या लोग बैठ के खाली तालियां बजाए, हेल्प समथिंग विच यू नो विच विल इज बेटर फॉर देम. Help a dumb animal. या जब हम बाहर जाते हैं तो बस किसी पे उड़ाने का या खाने में बहुत पैसे गवाते हैं, तो उसमें से बस थोड़े से पैसे इतने अच्छे कॉज के लिए डोनेट किए तो बहुत अच्छी बात है. तो प्लीज़ अगर आप में से किसी को भी कुछ डोनेट करना हो, प्लीज़ वो मिलाप साइट पे जाओ, मैं आपको लिंक बता दूँगी, ठीक है? सो आंटी, आपने कहा था इधर कोई इवेंट था वेर इंडियन ब्रीड्स के साथ कोई फॉरेन ब्रीड्स भी थे, बट इंडियन ब्रीड्स को कोई भी लेके नहीं गया था. दे वर ऑल देयर. सारे फॉरेन ब्रीड्स को लेके गया था. सो ऐसा क्यों? See, इन लोग क्या जो फॉरेन ब्रीड है उन लोग थोड़ी टाइम के लिए लेता है. हाँ. ऐसा डॉगी 6 महीना 1 साल हो जाता है, उन लोग तंग आता है और फिर छोड़ देते हैं. Okay. एक्चुअली अगर दे आर टेकिंग ओनली फॉर शो Okay. कि मेरे पास लैब्राडोर है, मेरे पास डैमिनेशन है, मेरे पास ये है, जस्ट फॉर कंपटीशन यू कैन से, वो पैसे वाले. वेयर इफ यू गो टू सी हमारे जो इंडियन डॉग्स है, नॉट ओनली वफादार, दे आर वेरी गुड वॉचमैन. Our Indian dogs, we do not give pedigree. We give chicken ka mundi and pav, which is very strengthening. बस पेडिग्री से कुछ नहीं होता है. As she said, chicken mundi and और chicken pav. pav are very strengthening. So 5,000, 6,000 डालने के बदले में how much do you get mundis for? it depends your area. So in some areas No, it's no, 10 10 rupees. dozen, It 10 rupees dozen. dozen. 10 Some रुपया buy- डजन कहाँ और 5,000 कहाँ? But see, many people believe they want to keep their dog a vegetarian. Fine, keep your dog a vegetarian. Very good. Give it chicken flavoring. These dogs cannot be made vegetarian. Moreover, give your dog घर का खाना का आदत. Not masala, not spices. Okay. मसालेदार खाना मत खिलाओ. तुमको जो भी खिलाना है खिलाओ. तो आई जस्ट वांट टू आस्क यू समथिंग. मैंने ऐसे सुना था कि उनको अपना घर का खाना ज़्यादा कर नहीं देना चाहिए बिकॉज उनके बाल निकल जाते हैं. तो ये सच है? So घर का खाना, इनकी जो बाल झड़ते हैं, you don't have to put salt in their food. You don't have to give them मसालेदार खाना. Okay, so important suggestion: no salt, no तीखा खाना for dogs, please. मैं एक आंटी को जानती हूँ, वो अपने कुत्तों को वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खिलाती है. वाटरमेलन खिलाती है सीड्स निकाल के, उनको कैरेट्स खिलाती है, बहुत कुछ. ये बहुत सैड है कि जो इंडियन डॉग्स है, जैसे हम इनको इंडीज बुलाते हैं हमारे एनिमल वेलफेयर में, इंडीज को अडॉप्ट करने कोई ज़्यादा जल्दी वापस नहीं आता है, या कोई आता नहीं आगे. आई डोंट नो ये क्या है इनका वो स्टेटस के लिए, या बहुत बहुत एकदम आकर्षक ये होते हैं कि यार मुझे अच्छा जात का कुत्ता लेना है, इंडियन डॉग नहीं लेना है, मेरे स्टेटस का सवाल है. कुछ महीने बाद वो डॉग रोड पे है. मेरी एक फ्रेंड है गीतांजलि नाम की,
उनके पास एक डॉग है बिल्बो करके। Okay. अभी ये कुत्ते के लिए बहुत सारे शेयर्स हो रहे हैं उसकी फेसबुक पोस्ट के, प्लीज अडॉप्ट। पर ऐसा है कि अडॉप्शन की रिक्वेस्ट जा रही है, पर ये है कोई सुन क्यों नहीं रहा है। आई एम श्योर सम कोई फार्म हाउस रहेगा या कहाँ पे ये बच्चे को एक जिंदगी मिल सकती है। बिकॉज सी आई नो वन थिंग, ऐसा है कि लोग सोचते हैं कि अलग धर्म जाति के लोग अडॉप्ट नहीं करते, कुत्तों से प्यार नहीं करते। सो आई हैव फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल, माई क्लासमेट्स, उनकी बहन का घर अलीबाग में है, उनके पास एक फार्म हाउस पे कहाँ से तो एक पपी डॉग आ गया। दे आर मुस्लिम्स, द डॉग इज देयर, द केयरटेकर्स आर टेकिंग केयर ऑफ दैट डॉग। They said we have no problem, this is a life, so they are taking care of it. So these people, the spit of the dog is unclean for them, but if they can understand, why can't everybody else understand? मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज मेरे मिलाप कैंपेन को सपोर्ट करो। कोई सुन नहीं रहा है ज्यादा। सेम में गीतांजलि रिक्वेस्ट कर रही है प्लीज इसको अडॉप्ट करो, या रिंकी रीचेस आउट फॉर फंड्स कि प्लीज हमें हेल्प करो। लोग हेल्प करते हैं, पर द वे पीपल हेल्प अदर प्लेटफॉर्म्स, प्लीज हेल्प फॉर द एनिमल्स। Are you listening, people? Please help. Yeah, now it's dinner time for my doggies, and later by 12:30 we feed the road dogs. They like their chicken soup, the chicken mundi pav what we feed them, and because of the chicken, Angel come on, and because of the chicken mundi pav, all the dogs are very healthy. And instead of giving pedigree, I think chicken mundi pav is much better to be fed to these doggies.